Smiles Chennai आया है, and we have come here to heal everybody. Smile means see magic in life every second. And so tomorrow we have a session in Chinmaya Heritage Center from 3 to 5, wherein we are going to transform people's life. As Hari Om Smiles has been traveling around India, around the globe, healing everybody. So we just want to ignite a soulful revolution, because we don't just want to heal physically, we want people to heal emotionally, mentally, and spiritually. So Smile is no organization, it is not also a mission, it is a wave, a movement to bring a transformation in today's world. In today's world, all the youth are living a life, say about a rat race. They're just running without having the right direction. So we just want to give them a pause for peace, a pause for purpose, and transform their life from stress to strength. We want them to live a life where there is no chaos, but there is clarity of life. We want to save them from breakdowns, and we want to give them breakthroughs. So Smile elevates the soul power, and we all are focused on a good lifestyle. So everybody is investing on beautiful lifestyle, but we want to focus more on great life. Beautiful lifestyle means lots of things, lots of materialistic things for which people are running and want life to be very successful. But Smiles कहता है ना कोई मन से अपंग हो, ना कोई तन से अपंग हो. And if we see, आज पूरे वर्ल्ड में मन की अपंगता मीन्स स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बहुत स्पीड से बढ़ रहा है. जितनी ग्रोथ हो रही है हमारी, उससे तेज़ी से ग्रोथ हो रही है मेडिसिन्स की, डिजीज़ की. एंड वी हैव अ मैसेज फॉर द सोसाइटी दैट देयर इज़ नो डिजीज़ इन ह्यूमन बॉडी, इट इज़ ऑलवेज डिसईज़. अगर आपका माइंड सेटल्ड नहीं है, अगर आपका माइंड पीसफुल नहीं है, सो आप बॉडी में डिसईज़ पैदा करते हैं, बिकॉज इनसाइड यू आर नॉट एट रेस्ट. So people are trying to look for happiness outside, and we are awakening people, letting them know that your happiness and peace is always inside. So we have to move from inside to outside. So this is Journey of Smiles, where we have healed lakhs of people from ailments which they were living with those ailments since 10 years, 25 years, so very old ailments, and they have come to Smiles, और एकदम मैजिकली वो हील हो जाते हैं. एंड यू नेम एनी एलिमेंट, वेदर इट इज़ फिजिकल, वेदर इट इज़ मेंटल, वेदर इट इज़ फाइनेंशियल, सो देर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन. सो you know, everybody is nowadays showing Smile, but that curve on the face comes when there is Insta, or when there are cameras around, when they are taking selfies. But Smile वो जो curve है वो अंदर सोल को देता है. So it gives that curve inside the roots of a human being, and when the soul smiles, the world automatically heals. तो हम एक जने की गारंटी नहीं लेते हैं, 2 जने की नहीं, हम पूरे वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. दैट इज़ वाई आवर स्लोगन इज़ सर्वे भवन्तु सुखिना, एंड वी आर वर्किंग फॉर द पीपल, बाय द पीपल, एंड टू एलिवेट द सोल जर्नी. सो सब लोग समझते हैं कि ये कैसे होगा, तो हम बताते हैं कुछ भी नहीं. हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी की आपस में मैरिज कराना चाहते हैं, अ वेडिंग, कनेक्शन विद अ हायर कॉन्शियसनेस. सो हम अनलिमिटेड को कंट्रोल करना चाह रहे हैं थ्रू दिस लिमिटेड बॉडी, वेयर एज इन व्हेन वी कम टू स्माइल्स वी लर्न that we are unlimited beings, we have immense power within, but now we have become dependent upon gadgets. तो हमें लगता है कि जितने गैजेट्स लाइफ में आएंगे, जितनी प्रॉपर्टीज़ आएंगी, जितना ब्रांडेड स्टफ आएगा, हम हैप्पी हो जाएंगे. बट वी हैव सीन इट अराउंड पीपल दैट ग्रेट लाइफ मीन्स कंटेंटमेंट. व्हेन यू आर हैप्पी इन ऑल स्टेट ऑफ लाइफ, तो वी गारंटी कि आपको ग्रोथ भी मिलेगी. बट अभी लोग
प्रोग्रेस और ग्रोथ का मतलब नहीं समझ रहे। लोग समझ रहे हैं प्रोग्रेस हो रही है दैट इज़ सक्सेस, बट हम बता रहे हैं सक्सेस मीन्स वेदर थिंग्स अराउंड यू आर अकॉर्डिंग टू यू और नॉट। आपको कहीं सक्सेस मिल रहा है नहीं मिल रहा, आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, फिर भी आपके फेस पे वो कर्व रहे, वो स्माइल रहे, आपके अंदर भी वो स्माइल रहे, दैट काइंड ऑफ लाइफ वी वांट टू गिव। दिस वाज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर एंशियंट विजडम। हमारा जितने भी ऋषि मुनीस थे उन्होंने जो हज़ारों साल पहले फाइंड किया कि इस बॉडी में बेस्ट ऑफ द हार्मोन्स कैसे रिलीज़ होते हैं, विच स्टेट में, तो उन्होंने फाइंड किया कि जब हम दान करते हैं, जब हम किसी को हेल्प करते हैं अनकंडीशनली, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस के हार्मोन सिक्रीट करती है। नाउ बिकॉज सोसाइटी में लाइफ ऐसी हो गई है कि एवरीबडी इज़ कंसर्न्ड अबाउट आईफोन, आईपैड, सो आई पे इतना ध्यान हो गया कि इलनेस बढ़ती जा रही है और हम सब उस चीज़ के विटनेस है। जितनी कंफर्ट, जितना फ्रीडम, जितनी एजुकेशन आज के यूथ के पास है, आज की सोसाइटी के पास है, उतना अर्थ पे पहले कभी भी नहीं हुई। सो वी आर ऑन दिस जर्नी टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम पीसेस टू पीस, फ्रॉम chaos to clarity, from I means illness, we want to bring everybody to we means wellness. तो wellness, so I request everybody to attend tomorrow's session, which is cure is sure. The only condition is that your mind should be pure. So people are working on lifestyle, whereas we want to work on their mindset. If their mind is settled at the right place, means हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी समझाते हैं, हम लिम्फिक ब्रेन भी पढ़ाते हैं, हम रूट ब्रेन भी पढ़ाते हैं, फिर हम ये भी बताते हैं कि कैसे मंत्रास का कनेक्शन है इन सब को सिंक्रोनाइज करने में। इफ़ वी आर चैंटिंग द राइट मंत्रा, तो हमारे ब्रेन पैटर्न बीटा वेव से कब अल्फ़ा पे और अल्फ़ा से थीटा पे आ जाता है, विच इज़ लाइक वेरी फास्ट वर्किंग। अभी हमारे जितनी भी मेडिटेशंस हैं, हमारे जो टूल्स हैं स्माइल्स में, उनके ऊपर न्यूरो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं एंड दे हैव फाउंड वेरी गुड रिजल्ट्स। सो हम लोग हवन कराते हैं एंड दिस हवन, इससे हम 20 किलोमीटर्स ऑफ एरिया को बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन से भर देते हैं। उस एरिया में जहाँ पे ट्रीज़ भी ब्रीथ कर रही हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बीइंग के अलावा भी ब्रीथ कर रहे हैं, एंड वी हैव शोन द रिजल्ट्स दैट देखते ही देखते एलिमेंट्स ठीक हो जाती हैं। सो हरिओम स्माइल्स इज़ अ वेव, जैसे मैंने पहले भी बोला, इट इज़ अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वी फील कि अगर हम ह्यूमन बॉडी में आए हैं तो हम सबका लेने की तरफ ध्यान है। हरिओम स्माइल्स देना सिखाता है, सो डायरेक्ट बेगरी से देवता की पोजीशन पे बिठा देता है। एंड यू विल मीट सो मैनी पीपल हु आर मेंबर्स ऑफ हरिओम स्माइल्स विल शेयर देयर लाइव्स कि लाइफ में एकदम सब कुछ चेंज हो गया। चेंज हो गया का मतलब ये नहीं है कि आसपास अब कोई चैलेंजेस नहीं रहे, बट नाउ दे नो हाउ टू हैंडल देयर चैलेंजेस विद लॉट्स ऑफ पीस, लॉट्स ऑफ स्माइल, एंड दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कामनेस। तो ये जीने का तरीका है, ये कोई एक रिलीजन नहीं है, इसमें कुछ और नहीं है ऐसा फॉलो करना, बस you have to be in a state of gratitude. So gratitude is one of our tools. There are lots of tools like pink energy, salt therapy, solar plexus, Shambhavi sadhana. तो हम अलग अलग कैंप्स लगाते हैं जहाँ पर जब लोग इकट्ठे होते हैं तो हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से महर्षि इफ़ेक्ट पैदा करते हैं। महर्षि इफ़ेक्ट वो इफ़ेक्ट है जिससे कि अर्थ की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। सो जब अर्थ की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस अपने आप एटमॉस्फेयर में से ही चला जाता है, एंड पीपल सडनली फील दैट दे हैव अ मोर स्टेबल लाइफ एंड दे हैव मोर कंपैशन फॉर पीपल अराउंड देम। तो ये सारे बहुत सारे चेंजेस हैं। स्माइल सेज दैट ज्ञान हमें जगाता है, जीना सिखलाता है, सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड हमें बताता है। हमारे जितने भी ओल्ड कस्टम्स और ट्रेडिशंस थे, लाइक पुटिंग अ बिंदी, लाइक वेयरिंग बैंगल्स, लाइक वेयरिंग बिछिया या पायल, या जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हैं,
दे वर ऑल साइंटिफिकली बेस्ड, जिससे कि एक ह्यूमन बॉडी एक बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर को अपने अंदर ही क्रिएट करती थी, जिसकी वजह से डिजीज़ेज़ नहीं आते थे. ग्रेजुअली वी स्टार्टेड फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर सो मच कि हमने इन सबको सुपरस्टिशन मानकर धीरे 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 छोड़ दिया. हम यूथ को वापस कनेक्ट करना चाह रहे हैं उनके कल्चर के साथ, बिकॉज ऑल दिस इज़ कनेक्टेड टू हायर कॉन्शियसनेस. सो इट्स नॉट सुपरस्टिशन, इट इज़ सुपर कॉन्शियसनेस. क्योंकि हम देख ही रहे हैं सोसाइटी में बहुत डिग्रीज़ आ गई हैं, बहुत पैसा आ गया है, बहुत फ्रीडम आ गया है, बट उतना ही बंधन हो गया है अपने ही विचारों का, अपने ही डर का, अपने ही स्ट्रेस का. सो हम चाहते हैं कि हम इससे आज़ाद कराएं, हमारे यूथ को स्पेशली आज़ाद कराएं हु आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर. और हम वहाँ देख ही रहे हैं, आई हैव बीन टू सो मैनी कंट्रीज़, और वहाँ पे रेशो ये निकल के आया है कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ देम, लोनलीनेस इज़ अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ. तो हम अपने भारत को उससे बचाना चाहते हैं. हमारा भारत ऋषि मुनियों का देश है और विश्व गुरु बनने की कला रखता है, क्योंकि हज़ारों लाखों साल पहले जो हमारे ऋषि मुनीज़ ने सर्च किया, उस पर आज भी रिसर्च हो रही है, तो भी रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है जितना उन्होंने फाइंड कर लिया था. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई मेंशन पतंजलि जी, तो उन्होंने माइंड, बॉडी और सोल का कनेक्शन वे बैक बता दिया था. अब न्यूरो साइंटिस्ट भी वही बोल रहे हैं, फिज़िक्स भी वही बोल रही है. दे आर टॉकिंग अबाउट क्वांटम फिज़िक्स, जो हमारे ऋषि मुनीज़ ने बहुत साल पहले खोज लिया था. तो हम मेडिटेशन के माध्यम से, हीलिंग के माध्यम से सबको बताना चाहते हैं कि हमारी बॉडी एक हीलिंग गैजेट है अपने आप में. अगर किसी भी और एनिमल को, जो जंगल में रह रहे हैं, जो पहाड़ों पे रह रहे हैं, जो वाटर में रह रहे हैं, अगर उन्हें डिजीज़ेज़ नहीं हो रहे, देन वाई विद ह्यूमन बींग्स? वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़, वी हैव ऑल द एजुकेशन, वी हैव सच गुड हाउसेस, स्टिल वी आर सफरिंग इन सो मैनी वेज़. उस सफरिंग से हमें एक जीवन का सफ़र बहुत सुंदर बनाना है, जहाँ बड़े घर में रहें, जहाँ बच्चे उनकी सेवा करें, जहाँ स्वयं के लिए टाइम हो. वी डोंट हैव टाइम फॉर आवरसेल्व्स. Now we don't want to paint the face with smile, we want to paint the soul with a smile, and that soul journey should be known to everybody, to all the people, all age group. इसमें ये भी नहीं है कि बड़े छोटे, सब एज ग्रुप इससे ट्रांसफॉर्मेशन फील कर रहे हैं. So this is what Hariom Smiles is doing. No, this is our third program in Chennai. Earlier we had, in fact this is the fourth program. First was the Rubaru, and then we did a 2-day session which was known as ध्यान का ज्ञान, जिसमें हम पूरी बॉडी का मैनुअल पढ़ाते हैं. हाउ डज, बिकॉज यू नो एवरीबडी इज़ सो मच कनेक्टेड टू वाईफाई टुडे, वी टीच पीपल वाई आई इन दिस वर्ल्ड. ध्यान का ज्ञान में वो सीखने को मिलता है. देन वी हैड एन आर्टिफिशियल लिम्ब स्कैम, बिकॉज हमने एक ड्राइव चलाई थी, ना कोई मन से अपंग ना कोई तन से अपंग. So we had these artificial limbs camp all over India, जिसमें से Chennai was also one of them. And now we have this cure is sure, and we are very sure that कल जो भी आएगा वो अपने हर डिजीज़ से, in fact I would request सब अपना मेडिकल टेस्ट करवा के आएँ, मेडिकल रिपोर्ट्स अभी चेकअप करा के आएँ, नेक्स्ट डे ही देखें कि उनके मेडिकल पैरामीटर्स में कितना चेंज आ गया है. It is not chargeable, because सोल से क्या चार्ज करेंगे? It's a way to reciprocate to love. वो लव जो हमें यूनिवर्स देता आया है. See, this whole of this nature has been serving us. सन हमें धूप भेज रहा है, वो कोई चार्ज नहीं मांग रहा. वाटर गंगा का आता है हिमालय से, वो कोई चार्ज नहीं मांग रहा. ये एयर कोई चार्ज नहीं मांग रही. So likewise it smiles. It is just on a movement to heal everybody. What is the main vision of Smiles? As I mentioned, we want to ignite a soulful revolution where we are not healing only the symptoms. Now the whole world is healing the symptoms. So they are healing physically, only the body. But we want to heal every person emotionally, mentally and spiritually. So where they have space, you know, everybody has a space to connect to their inner self, the core self. And you know, nowadays everybody has a scrolling life, so they're always scrolling, but we want them to give a soulful living, soulful life. Smile will give an impact to nowadays youths. Definitely it is meant for a youth, because see, smile enhances your memory power.
Smile enhances your decision making power, and definitely youth needs all these things. Smile teaches how to be multi-dimensional. Now what is happening is children or youth are multitasking. So we say don't become multitasker. In fact, become a master of your life. Become a master of all the situations. You don't have to get carried away with the situations around. You have to turn every situation into an opportunity, which Smile is teaching. So Smile is working in all arenas, and definitely this is the best time for the youth to understand that. Is it science and spirituality is connected? Oh yeah, definitely. See, one thing common in science and spirituality is both are trying to find what is possible from impossible, and they do it. You know how much science has done so many inventions, wherein if I talk 50 years back, nobody would have thought that we'll have a phone, like a phone which we can carry in our pocket, and we can talk to anybody, or we can talk on video calls and all. So impossible में से possible science ने करके दिखाया है. और spirituality में अगर हम आर्यभट्ट जी को देखें, so thousands years back he invented zero, he knew the distance of earth from the sun. So ये सब तो spirituality और science में बस यही फ़र्क है. Science अंदर से बाहर की ओर जाता है और spirituality बाहर से अंदर की ओर लेकर आती है. You are promoting meditation. Can it help to change our situations? Definitely. First of all, meditation definitely changes the situation, but bigger than that, it changes our way of looking at the situation. It gives us a new lens, जिसको हम बोलते हैं दृष्टि बदलो और सृष्टि बदल जाएगी. So our attitude towards the situation changes, and the moment our attitude changes, our altitude changes, and when the altitude changes, our aptitude also changes. So situation चाहे वही हो, but हमारा देखने का नज़रिया बदल जाएगा. If I'm driving on this road, there will be so many red lights, turns, curves, and so many stops where I have to stop my car. But if I'm flying in an aeroplane, I will just see those things. I will just visualize from above. So meditation is a lift. It gives you a flight to fly. You still witness things, but you don't get into that chaos. So meditation elevates you. What is your advice for new generation? They all are pledged totally with the gadgets. Yeah, I would request all these gadgets came to our life to give us comfort. So anything which is in our control give us freedom. But when we come in control of things, it takes away our freedom. तो ये जितने भी गैजेट्स हैं इन्होंने हमारा फ्रीडम ही छीन लिया, हमारी लाइफ ही छीन लिया, हमारा टाइम ही छीन लिया है. सो हम इन लोगों को सिखाते हैं डिजिटल डिटॉक्स, विच वी डोंट आस्क देम टू डू. वी transform their frequency, their energy, so automatically they get away from those gadgets because they are looking for happiness from those gadgets. but जब उन्हें अपने अंदर से ही happiness मिलने लग जाती है तो they understand, इतनी clarity आ जाती है उनके brain में, that is why we make sure that we work upon their prefrontal cortex, जो हम मंत्रास के द्वारा करते हैं. once there is a clarity, they know कि अभी हमें इतनी टाइम के लिए, so they keep fast off from all these gadgets, and then they feel very relaxed, and then they see themselves कि उनकी बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है. जो भी वो अपने गोल्स बना रहे थे वो उनकी स्पीड बढ़ जाती है उन गोल्स को पाने में. मोनिका जी, म्यूजिक इज डिवाइन. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. तो को नहीं आ रही है, व्हेन आई एम सीइंग द ब्रेन चक्रा, सो आधों का ही वर्क कर रहा है. रात को किसको आराम से नींद आती है आप में से? डू यू स्लीप वेल, डीप स्लीप? मुझे तो अभी तक किसी की भी नहीं नज़र आई है, थोड़ी थोड़ी उधर नज़र आई है, दैट्स ऑल. आई एम नॉट, सी हम लोग ह्यूमन बॉडी पे काम कर रहे हैं, वेयर एज हमें एनर्जी बॉडी पे काम करना है. व्हेन वी आर स्लीपिंग, हु इज सेंडिंग अस ब्रेथ? हाउ आर द ऑर्गन्स वर्किंग? वी आर asleep. There is some bigger force, the unlimited force, which is managing this limited force, and we are trying to control the unlimited with the limited. हम बिल्कुल उल्टा करा देते हैं, हम अनलिमिटेड से दोस्ती करा देते हैं, फिर ये लिमिटेड को तो हमारे हिसाब से चलता है. इट बिकम्स लाइक अ पपेट, एंड दैट इज़ वेयर द ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स. वी गारंटी कोई भी एलिमेंट हो, मनी की हो, हेल्थ की हो, मेंटली हो या रिलेशंस की हो,
100% हील हो जाते हैं अगर आपकी फ्रीक्वेंसी, लाइक वी यूज़ अ रिमोट कंट्रोल टू शिफ्ट चैनल्स, सेम वे वी यूज़ आवर टूल्स टू शिफ्ट द फ्रीक्वेंसी। सडनली जिससे हमारी लड़ाई झगड़े होते हैं वही हमारे सबसे बेस्ट मित्र बन जाते हैं, हमारी फैमिली में रिलेशंस बेटर हो जाते हैं। और हम ये बोलते हैं स्माइल्स में कि हम में से किसी को मर के स्वर्ग में नहीं जाना है, सब लोग स्वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। हम कहते हैं घर को स्वर्ग बनाना है, अपनी लाइफ को स्वर्ग बनाकर जीना है। मर के किसने स्वर्ग देखा है? एवरी मोमेंट व्हेन वी आर इन नेगेटिविटी हम अपना एक नर्क पैदा करते हैं, हमें उसको स्वर्ग बना के रखना है, विच इज़ वेरी ईजी इफ वी शिफ्ट द फ्रीक्वेंसी। सो वी जस्ट हैव टू चेंज द करेंट्स। हमारे ब्रेन में हर वक्त 4 to 5 वेव्स रहती हैं, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा एंड गामा। हमारे एक टूल से, अभी जो न्यूरो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया हमारे टूल्स पे, शी इज़ क्वाइट सरप्राइज, शी इज़ इन्वाइटिंग अस टू दुबई टू हैव लॉट्स ऑफ सेशंस विद अस, बिकॉज शी सेज कि मैंने इतनी जल्दी एक ब्रेन को बीटा से अल्फा और अल्फा से सीधा गामा पे जाते नहीं देखा, बिकॉज गामा स्टेट तक पहुंचना इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग। और हमारी एक मेडिटेशन से आदमी फटाफट गामा में जा रहा है, वेयर यू कैन हैव क्लैरिटी ऑफ द यूनिवर्स। वो जितनी भी एडिसन ने रिसर्च करी, आइंस्टाइन ने रिसर्च करी, इट वॉज दैट स्टेट ऑफ माइंड। उसमें हम अपनी मेडिटेशन और अपने टूल से पहुंचा रहे हैं। सो शी वॉज वेरी हैप्पी। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट साइंटिस्ट, a person who is passed out from Stanford, Berkeley, Harvard. She is researching all over world and still they are unable to help the people who have these mental issues. और अब mental issue मुझे नहीं लगता किसी भी जने को नहीं है। पहले तो पागल खाने में जाना पड़ता, तब तो मुझे लगता है कि जीवन ही पागल खाना बन गया है। मैं राइट और रॉन्ग? कुरुक्षेत्र हर जने की लाइफ में है, सो हमें उसको कुरुक्षेत्र से निकाल कर अपने हृदय की रामायण में बिठाना है। सो दिस इज़ वॉट वी आर डूइंग। सो आप सब भी पार्टिसिपेट करिए, और पहले तो आप लोग मैजिक विटनेस करिए, तो आपको लिखने में भी मज़ा आएगा, भेजने में भी मज़ा आएगा। डोंट यू?